Students, let us study isoquinoline today. So isoquinoline is a heterocyclic compound which is a condensed system, and it contains a benzene ring and a pyridine ring. But the nitrogen atom present is at position 2. The numbering starts from this carbon and nitrogen gets number 2. The rest of the carbons get similar numbers as they get in quinoline. So let us now do the preparation. So preparation can be done by a number of methods, but the most important method is the Bischler-Napierlewski method. So we start with that method, Bischler-Napierlewski method or synthesis. Bischler-Napierlewski synthesis. So in this method we need a beta-phenyl ethylamide. So what is that? Beta-phenyl ethylamide is what? CH2 NH CO R. So it is a beta-phenyl ethylamide. Let us see how. Basically this RCONH2 is an amide, but now here we have this as alpha carbon and this as a beta carbon, and at beta carbon we have a phenyl group, so it is a beta-phenyl ethyl and amide. So this beta-phenyl ethylamide, when heated with POCl3, it undergoes cyclodehydration. If this is H, CH2, N, C, R, here OH, here a double bond between carbon and nitrogen. Then this water gets removed and cyclodehydration takes place, minus H2O, and it leads to the ring closure. Ring will close, and if I simply use the bond line notation, then we get this. This is 3,4-dihydro isoquinoline, 1-alkyl 3,4-dihydro isoquinoline, and then this can be readily dehydrogenated to get isoquinoline. R, a double bond was already here, another double bond will be introduced here, and this dehydrogenation can be carried out with the usual reagents: palladium in presence of carbon, or selenium, or sulfur. So this is the reaction, Bischler-Napierlewski reaction, and now let us do the mechanism of the reaction. Yes, let us do the mechanism. So we have a beta-phenyl ethylamide, let us write it in this way, and then we have POCl3. We are writing it like this. A chloride will be removed from here, this chloride, and this electron deficiency of phosphorus, which is created by the removal of this chloride ion, can be fulfilled by this carbon atom when this electron pair shifts over here.
these electrons, yes, when this electron pair shifts here, these electrons will go to the next atom, oxygen atom, और ये oxygen atom जब negative होगा तो it can then combine with this phosphorus atom. Let us see how. NH. Now a positive charge will be there on nitrogen because the electrons have moved away from it, and a double bond with this carbon. This carbon now is bonded to oxygen with a single bond, phosphorus, O, Cl and Cl, and यहाँ पे एक R है. अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में इस तरह से शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ बॉन्ड बन जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह. सो अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमने शिफ्ट दिखाए हैं तो हम यहाँ बॉन्ड नहीं बनाएंगे. NH, यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, R, एक यहाँ हाइड्रोजन है, और ये O, P, डबल बॉन्ड O, Cl और ये Cl. ठीक है. अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस रिंग में चले जाएंगे. सो -H पॉजिटिव. अब ये वापस आ गए रिंग में तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया. NH, N के ऊपर लोन पेयर, देन कार्बन, इधर है एल्काइल, इधर है O, और phosphorus, double bond O, Cl and a Cl. अब नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं. अब यहाँ से ये निकल जाएगा ग्रुप, और साथ में यहाँ से H पॉजिटिव भी निकलेगा. फिर वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे. सो यहाँ लिख देते हैं माइनस, क्या क्या निकल रहा है, POCl2, और यहाँ से ये OH ये निकाल दिया. और अब ये इस तरह से हमने इसको लिखा R, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इसको ऐसे हम दिखाई दें, यहाँ पे ये बॉन्ड दिखा दें और यहाँ ये हाइड्रोजन दिखा दें, तो जब ये निकला है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया तो ये हाइड्रोजन भी निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ, और यहाँ बन जाएगा एक डबल बॉन्ड इस तरह से. और ये यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए थे तो यहाँ कार्बन और यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ था, वो हमने नहीं दिखाया. ये यहाँ ये दिखा देते हैं इस बॉन्ड को, यहाँ ये बॉन्ड फॉर्म हुआ था. ये हाइड्रोजन निकल गया, उससे क्या हुआ, ये वापस अंदर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड हमसे यहाँ मिस हो गया. लेट अस ड्रॉ दिस बॉन्ड. ये इस तरह से, तभी तो ये पूरा हुआ ना यहाँ पे. ठीक है. अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हमने डिहाइड्रोजनेशन करना है, तो उसके लिए पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, या सल्फर या सेलेनियम भी यूज किया जा सकता है. और N लिखा इधर, R, यहाँ डबल बॉन्ड पहले था, अब यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया. अब ये बन गया आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव, जहाँ 1 पोजीशन पे एल्काइल है. तो इस तरह से बिशलर-नेपेलिस की रिएक्शन होता है. लेट अस सी वंस अगेन द स्टेप्स इन द मैकेनिज्म. ये हमने लिया है बीटा फिनाइल इथाइल अमीन. अब यहाँ पे क्या है कि जब इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PuCl3, तो 1 क्लोराइड विल बी लॉस्ट फ्रॉम हेयर. अब फास्फोरस हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन्स जाने से. तो अब फास्फोरस बॉन्ड बना सकता है किसके साथ, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होते हैं और ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये O नेगेटिव हो गया.
अब ये O नेगेटिव इस P पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो ये हमने सीधे बना के दिखा दिया कि O और P के बीच एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बाकी का सब कुछ वैसे ही, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसे यहाँ था, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। अब आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, और जब ये शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाने में हेल्प कर सकते हैं बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स। ये हमने बना दिया यहाँ बॉन्ड, पर यहाँ एक हाइड्रोजन भी है तो वो निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस रिंग में आते हैं। रिंग एक बार फिर से एरोमेटिक होती है, यहाँ रिंग ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज किया था, यहाँ पे ये बॉन्ड हमने लगा के रिंग को एक बार फिर से एरोमेटिक बनाया है, और उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ये सारा ग्रुप निकलता है अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, इस पेयर के साथ। तो इस तरह O और H आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो ये OH हमने यहाँ पे लिखा है। बाकी ये PO और ये 2 Cl एटम्स हैं, वो सारा ये ग्रुप हमने यहाँ निकाल दिया। तो अब इसके बाद करना है डिहाइड्रोजनेशन, एंड दैट कैन बी डन इजीली। सो दिस वाज द reaction, Bichler-Napelewski reaction and its synthesis. Now let us do another reaction. Yes, let us do another reaction, and this is Pictet Spengler, Spengler synthesis. Pictet Spengler synthesis. इसमें क्या है, ये भी थोड़ी मिलती जुलती रिएक्शन है। अगेन वी हैव टेकन बीटा फिनाइल, तो यहाँ बॉन्ड लाइन से इसको शो कर रहे हैं, अमीन। इस बार हमने क्या लिया है, बीटा फिनाइल अमीन लिया है, प्लस इसका रिएक्शन करवाएंगे किसी एल्डिहाइड के साथ, तो ये हमने एल्डिहाइड ले लिया। रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, टेम्परेचर 373 केल्विन। यहाँ वाटर का एलिमिनेशन होगा, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, वाटर का एलिमिनेशन। और अच्छा, अब क्या है, ये NH पॉजिटिव मैंने यहाँ इसको लिख दिया, सीधा एक स्टेप मैंने बीच में CHR क्या किया हमने, यहाँ N और C के बीच तो डबल बॉन्ड फॉर्म होना था, वो हमने ये फॉर्म कर दिया, N और C के बीच डबल बॉन्ड। ये पार्ट कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है एल्डिहाइड से। और ये H पॉजिटिव क्यों लिखा, NH पॉजिटिव, क्योंकि HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो दीज प्रोटॉन्स विल प्रोटोनेट दिस नाइट्रोजन एटम विच हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए प्रोटॉन ने नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर दिया, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। और अब आगे करेंगे रिंग क्लोजर। तो रिंग क्लोजर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और जैसा अभी हमने पीछे किया कि फिर एरोमेटिक कैरेक्टर रिंग का लॉस्ट होता है और बाद में रीगेन हो जाता है, तो वही सारे स्टेप्स अब हम इसको यहाँ लिखते हैं। NH, इधर सिंगल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड फॉर्म करना है, और यहाँ ऐसे कर देते हैं, एक H, एक R और एक H यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह जाएंगे बाय द लॉस ऑफ H पॉजिटिव, बाय द लॉस ऑफ H पॉजिटिव। ये बना दिया, ये वाला बॉन्ड बना दिया पूरा। अच्छा, इधर क्या है, इधर NH और R, और इस हाइड्रोजन को भी दिखा देते हैं इस तरह से। तो अब ये 1 पे भी हाइड्रोजन है, 2 पे भी है, 3 पे भी है और 4 पे भी है, तो इट इज, और 1 पे एल्काइल भी है, तो 1 एल्काइल, देन 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। और अब करना है इसका डिहाइड्रोजनेशन, तो वी यूज द सेम रिएजेंट, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हीट किया, लॉस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये यहाँ एल्काइल भी आएगा, और इस तरह से ये बन गया एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन। सो दिस वाज पिक्टेट
स्पेंगुलर सिंथेसिस, काफी मिलती जुलती रिएक्शन है। हम यहाँ अमाइड ना लेकर के यहाँ अमीन ले रहे हैं और यहाँ एल्डिहाइड ले रहे हैं। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है। पहले तो ये कंडेंसेशन है, वाटर निकल रहा है, या सिंपल जैसे एल्डिहाइड्स का रिएक्शन होता ही है NH2 डेरिवेटिव्स के साथ, वही रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद रिंग क्लोजर है। ये काफी स्टेप्स मिलते जुलते हैं। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, POMERANZ, पोमरांस फ्रिज सिंथेसिस। ये रिएक्शन, हाँ, ये भी काफी हद तक मिलती जुलती है। अब हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, तो ये ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड और यहाँ NH2CH2CH, ये क्या ले रहे हैं हम, एसिटल ले रहे हैं, अमीनो एसिटल। दिस इज अमीनो एसिटल। और अगेन वाटर का लॉस, ये रिएक्शन तो होता ही है एल्डिहाइड्स में और NH2 डेरिवेटिव्स में या अमोनिया डेरिवेटिव्स में, तो वही रिएक्शन है, वाटर निकल गया। और अब CH डबल बॉन्ड N, कहाँ से लिखा हमने, ये CH लिखा, फिर डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, और N के साथ आगे CH2 है, CH2 के आगे यहाँ CH है और दो ग्रुप्स हैं OC2H5, OC2H5। अब करना है इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट, a loss of 2 molecules of ethanol and ring closure will take place and isoquinoline will be obtained. So these were the methods of preparation of isoquinoline. Now let us do the properties, other properties. So if we draw the resonating structures for some of the resonating structures for isoquinoline, तो एक स्ट्रक्चर तो यही हो जाएगा जो अभी तक हम रिएक्शंस में यूज कर रहे थे, नाइट्रोजन। अभी हमने डबल बॉन्ड को यहाँ बीच में लिया था ना, और अब हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर, एंड देन एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा पिरिडीन में भी होता है। तब क्या होगा, नाइट्रोजन अब यहां से इधर शिफ्ट हुए हैं तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड वैसे ही बना देना है जैसे यहाँ पे भी था। और इसके बाद इसी तरह के और भी बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, इसी तरह के बनते जाएंगे। पर ये दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ये हमने बना के देख लिए। अब ये जो आइसोक्विनोलिन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है जैसे क्विनोलिन करता है। एरोमेटिक कंपाउंड है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ओके, अगर करना है हमें सल्फोनेशन, तो जैसे क्विनोलिन में किया आइसोक्विनोलिन में भी उसी तरह से है। वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ टू सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन्स। एक बार सब्स्टिट्यूशन होगा 5 पोजीशन पे और एक बार सब्स्टिट्यूशन होगा 8 पोजीशन पे, और ये बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं कि हो रहा है, इस पार्ट पे नहीं हो रहा, पिरिडीन वाली रिंग पे नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन विदड्रॉ कर लेता है, तो ये वाली जो रिंग है रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है रिलेटिवली उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और वहां सब्स्टिट्यूशन होती है। और इसमें ये जो 5 वाला प्रोडक्ट है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, द अदर वन इज द माइनर प्रोडक्ट। अब ये सल्फोनेशन हमने करनी कैसे है, तो इसके लिए ओलियम यूज करना है। ओलियम क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड,
इज ओलियम, और 453 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करेंगे। आगे चलते हैं, लेट अस डू द नाइट्रेशन। अब इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, सीधा अंदर सर्कल लगाया, ये दोनों तरह से मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे सर्कल लगा दिया, अगर बॉन्ड्स नहीं बनाने हैं तो ये बना दिया, और फिर नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे 5th कार्बन पे और 8th कार्बन पे। नाइट्रेशन कैसे करेंगे? concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, ये हो गया नाइट्रेशन। अब करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 नाइट्रोजन, तो सब्स्टिट्यूशन 4 पोजीशन पे होता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट पोजीशन 4। तो ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनका मैकेनिज्म भी वैसे ही होगा जैसा हम क्विनोलिन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनका मैकेनिज्म अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फॉर क्विनोलिन, बिल्कुल उसी तरह से है। हम यहाँ पे अब लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी वही 2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हैं, 2 रिएक्शंस, वो जो हमने पिरिडीन में भी किए, क्विनोलिन में भी किए, और अब आइसोक्विनोलिन के लिए भी करेंगे। कौन से 2 रिएक्शंस? चिचिबेबिन है और रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्काइल लिथियम के साथ हो सकता है, तो हम यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। पहले करते हैं चिचिबेबिन रिएक्शन। चिचिबेबिन रिएक्शन में सोडामाइड लेते हैं NaNH2, हीट करते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में। अब यहाँ NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगी एट पोजीशन 1 NH2। और अगर हम करें रिएक्शन विद C2H5 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ईथर के प्रेजेंस में, ईथर एज ए सॉल्वेंट, ये लिखा N, तो 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ? C2H5 नेगेटिव, C2H5 का सब्स्टिट्यूशन होगा। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो उसी तरह से हैं, एक बार फिर उनको लिख देते हैं। रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन कैन बी कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ वेज। If we are using hydrogen in presence of platinum, complete reduction will take place in this way. And if we are using tin in presence of HCl, then only the pyridine ring will be reduced, N, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर रहे हैं तब अब यहाँ 1 और 2 पे रिडक्शन होगा, तो 1 और 2 पे डाईहाइड्रो, ऐसे 1 2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, ये है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन ही बहुत सिंपल है, अगर हमने क्विनोलिन को अच्छे से कर लिया या इनफैक्ट पिरिडीन को अच्छे से अगर हमने पढ़ लिया तो ये रिएक्शंस बिल्कुल उसी तरह से हो रहे हैं, बहुत ईजी हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन भी हम 2 तरह से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। एक तो करते हैं एल्काइल KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं, अल्कलाइन पोटाशियम पर मैंगनेट, तो रिंग ओपनिंग होती है एंड वी गेट अ मिक्सचर। इसको यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन COOH COOH, ये कुछ नहीं है, इस तरह से एक मिक्सचर हमें मिलेगा थैलिक एसिड का, और इसका नाम होता है सिनकोमेरोनिक एसिड।
और अगर हम लेते हैं C6H5COOOH, ये क्या है? परऑक्सी एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड या परबेंजोइक एसिड, तो आइसोक्विनोलिन एन ऑक्साइड मिलेगा। वो क्या हुआ? आइसोक्विनोलिन एन ऑक्साइड। बस इस तरह से नाइट्रोजन एटम पे ऑक्सीजन दिखाना है प्लस, या फिर यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड C6H5COOH। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और आइसोक्विनोलिन भी क्विनोलिन की ही तरह बेसिक होता है, कंसिडरेबल बेसिक कैरेक्टर इसमें भी होता है, और क्योंकि बेसिक है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट्स विद एसिड्स एंड क्वाटरनरी सॉल्ट्स विद एल्काइल हैलाइड्स। तो अगर HCl के साथ इसको हम ट्रीट करवाएं तो इट विल फॉर्म सॉल्ट, नाइट्रोजन H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड है ये। और अगर एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिड बेस रिएक्शन है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा यहाँ, N पे एल्काइल और आयोडाइड। दिस इज 2-मिथाइल, एल्काइल कौन सा है? मिथाइल है, तो 2-मिथाइल आइसोक्विनोलिनियम आयोडाइड इसको बोलते हैं। ये हमने आज पढ़ा आइसोक्विनोलिन, उसका प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। तो इसी के साथ हमारा हेट्रोसाइक्लिक्स के हमने सभी कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लास्ट वीडियो था। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और नए टॉपिक्स लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।